Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter number 6 of Ganit Manjari for class 9th, that is measuring shapes, perimeter and its area. हमने perimeter भी calculate कर लिया और area भी calculate कर लिया different shapes का, जो अभी तक हमने lectures cover किए हैं उसके अंदर. अब 3 एक्सरसाइज में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, 6.1, 6.2 एंड 6.3 एक्सरसाइज. From today we are going to discuss or going to start with the new exercise, that is end of chapter exercise. So in the end of chapter exercise, question number 1 is based on the algebraic expression figure, which we already cover in the chapter of algebraic expressions. Now from question number 2 onwards we are going to solve the question. So the question number 2 or question number 1 for today is question number 2 of end of chapter exercise is an isosceles triangle. यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो बात कर रहा है वो कर रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो है वो इक्वल नहीं होती. Let this is the isosceles triangle ABC and AB is equal to AC, right? Has a perimeter of 40 centimeter. क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर कितना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? 40 सेंटीमीटर, right? The equal sides are 15 centimeter each. इक्वल साइड जो है that is 15 centimeter each. यानी AB की जो लेंथ है वो हो गई 15 सेंटीमीटर एंड AC की जो लेंथ है वो भी हो गई 15 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ द ट्राइंगल सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है. तो पेरीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? AB की लेंथ प्लस AC की लेंथ प्लस BC की लेंथ, राइट? पेरीमीटर दिया हुआ है 40, AB जो है वो 15 सेंटीमीटर है, AC जो है वो भी 15 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू मुझे पता नहीं. सो BC की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 40, 15 प्लस 15 इज 30 और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -30. तो BC की लेंथ मेरे पास यहाँ आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड साइड जो आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला. यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अब हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर, यानी कि S की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. S की वैल्यू क्या होती है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, वेयर A प्लस B प्लस C they are the respective side lengths of the triangle. So यहाँ पर A plus B plus C की जगह आप क्या लिख सकते हो? This is equal to AB plus AC plus BC divided by 2. So this is 40 divided by 2, so that comes out to be 20 सेंटीमीटर. सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर. सो एरिया का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला में? दैट इज इक्वल टू S माइनस S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. Let this side is equal to A, this side is equal to B and this side is equal to C, small c. So S की वैल्यू कितनी थी? 20 थी. So 20 minus 15, this is 20 minus 15 and this is 20 minus 10, right? So under root of 20, 5 multiply by 5 multiply by 10. This 20 can be written as 2 multiply by 10. Make the pair, 5 5 का 1 pair, 10 10 का 1 pair. So 5 multiply by 10 under root of 2. This is 50 under root of 2. Right? Unit is centimeter square. Or if you know the value of root 2, you can put it. Root 2 value that is equal to 50 multiplied by 1.414 and the answer comes out to be 70.71 centimeter square. So either you can write it like this,
If the root 2 value is not given in the question, then up to this level your answer is treated as correct. If you are able to put the value of root 2 and you remember the value of the root 2, you can find the answer till this point. Both answers are correct. No answer is wrong in this case. Now moving to the next question. An isosceles triangle has a base 10 centimeter. क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो किसकी बात कर रहा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी क्या होती है, दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं. लेट द ट्रायंगल इज ए बी सी, वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये दो साइड्स हैं, ये मेरी क्या है, इक्वल हैं. और उसने बोला बेस कितना है, यानी कि दिस बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, BC की लेंथ उसने दे दी, BC लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द इक्वल साइड? इक्वल साइड की लेंथ जो है वो क्या होंगी, यानी कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AB इज इक्वल टू AC, इसकी वैल्यू क्या होगी? सो एरिया का फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. यही होता है फॉर्मूला. एरिया की वैल्यू मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 60. पुट द वैल्यू एरिया इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय बेस. बेस कितना हो गया, 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब इसमें हाइट को अगर मुझे डिनोट करना हो तो मैं क्या करूंगी, ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगी बीसी साइड के ऊपर. सो ए वर्टेक्स से जब मैं इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगी बीसी साइड पर, सो ये मेरा मानने, ये कट करता है मान लो मेरा एम पॉइंट पर. तो ये एंगल जो बनेगा दिस एंगल इज 90 डिग्री. और बी एम जो है दैट इज इक्वल टू एम सी. वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी के इक्वल हो जाएगा. सो हाइट कौन सी है, दिस इज द एम इज द हाइट ऑफ द triangle. Now 60 multiply by 2 divided by 10. So this is equal to height of the triangle. So this is equal to height h comes out to be 12 सेंटीमीटर. हाइट आ गई मेरी 12 सेंटीमीटर. अब मैं देखूं तो मेरा ट्राइंगल देखो, सिंस AM जो है is the altitude on BC. So BM जो है that is equal to MC and that is equal to 1/2 of BC. और BC की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है. तो BM और MC की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी. नाउ इन ट्रायंगल ABM, ये मेरा ट्रायंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं क्या कर सकती हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूं. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर. AB का स्क्वायर मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है. AM यानी कि मेरे को हाइट की वैल्यू पता है, वो कितनी आई थी, 12 सेंटीमीटर आई थी. सो दिस इज 12 स्क्वायर. BM की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. तो दिस इज 5 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25. सो AB का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 169. फ्रॉम हियर AB comes out to be square root of 169. 169 का स्क्वायर रूट जो है that is equal to 13 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ABC is a isosceles triangle, तो AB और AC जो है वो मेरी साइड इक्वल है. So the length of equal sides is equal to 13 centimeter. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 4. Question number 4 is the area of a right angled triangle. अब कैसा ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल दे रखा है. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेती हूँ. मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया. लेट दिस ट्राइंगल इज AB and C. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया दे रखा है दैट इज गिवन एज
54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। वन ऑफ इट्स लेग हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो लेग है, ट्राइंगल की दो लेग्स हैं, दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। AC जो है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब दो लेग्स कौन कौन सी बची हैं, लेग्स का मतलब टू साइड्स, ठीक है। थर्ड हाइपोटेन्यूज की वो बात नहीं कर रहा, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स बच गए उसकी बात कर रहा है। उनमें से एक साइड जो है वो किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। मान लिया कि ये साइड जो है ये 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। फाइंड द पेरीमीटर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्राइंगल। सो इधर बेस क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC, और हाइट जो है वो क्या हो गई, AB हो गई, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो AB इज नोन एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। एरिया जो है दैट इज गिवन एज 54। सो 54 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय AB। सो AB इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 12, 54 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। 2 से कट करते हैं, ये 6 पे जाएगा, ये जाएगा मेरा 2 7 27 पे। फिर से मैं 2 से कट करूंगी तो ये जाएगा मेरा 3 पर, और ये कट हो गया। फिर से 3 से कट करेंगे तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो आ गई दैट कम्स आउट टू बी 9 सेंटीमीटर। ये वाली साइड जो आ गई ये आ गई 9 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन ट्राइंगल ABC I can use the Pythagoras theorem. What does the Pythagoras theorem? She says AC square is equal to AB square plus BC square using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is only applicable in the right angle triangle. In rest of the triangle, whether it is an acute angle triangle, whether it is an obtuse angle triangle or equilateral triangle or isosceles triangle, you cannot use Pythagoras theorem. So put the values. AC is not given, so AC ka square, AB is given as 9 centimeter, so 9 square plus BC is given as 12, so 12 square. 9 square is 81 and 12 square is 144. On adding 81 and 144, we got 225. This is equal to AC ka square. So from here AC is equal to square root of 225, and 225 is the 15. Square root of 225 is 15. So 15 सेंटीमीटर. So AC की लेंथ जो आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, right? Now what we have to find, we have to find the perimeter of the triangle. So perimeter of the triangle is equal to, perimeter is equal to AB plus BC plus CA. AB is 9 centimeter, BC is 12 centimeter and CA is 15 centimeter. So on adding all these, what we got, perimeter comes out to be 36 centimeter. In this way, you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 5. The sides of a triangle are in the ratio 2:3:4. एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स जो है वो किस रेशियो में है, 2:3:4 रेशियो में, एंड पेरीमीटर इज गिवन एज 45 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है वो आपको कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं मान लेती हूं कि लेट साइड्स of a triangle are 2x, 3x and 4x सेंटीमीटर। क्योंकि रेशो दे रखा है साइड्स का, क्या दे रखा है, 2:3:4 दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि साइड जो है वो क्या है, एक साइड है 2x, दूसरी साइड है 3x और थर्ड साइड जो है वो है 4x। पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, सारी साइड्स के सम के इक्वल होता है ट्राइंगल में। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x plus 3x plus 4x. This is equal to given 45 centimeter. 45 centimeter is equal to 9x. 45 divided by 9 is coming out to be x.
सो फ्रॉम हियर x कम्स आउट टू बी 5. x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर आई है. साइड्स क्या आएंगी? साइड 1 ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 multiplied by 5, that comes out to be 10 centimeter. Side 2 of the triangle is equal to 3 multiplied by 5, that comes out to be 15 centimeter. And side 3 of the triangle, that comes out to be 4 multiplied by 5, this is equal to 20 centimeter. अब क्या फाइंड आउट करना है? मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. मुझे क्या पता है? तीनों साइड्स पता है ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स किसके इक्वल है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के इक्वल है. बट जब मुझे इस तरीके से पता हो कि मेरे को सिर्फ साइड पता है, ना तो टाइप ऑफ द ट्राइंगल पता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, कि वेदर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और अ राइट एंगल ट्राइंगल. इन दैट केस if you have to use or apply the Heron's formula. Heron's formula अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? तीनों साइड का सम, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर. तो दैट इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2. So the answer comes out to be 22.5 centimeter. This is semi perimeter and denoted by small s. स्मॉल एस की वैल्यू कितनी आ गई? 22.5 आ गई. साइड 1 जो है, लेट दिस साइड इज इक्वल टू ए, दिस साइड इज इक्वल टू बी एंड दिस साइड इज इक्वल टू सी. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? s इंटू एस माइनस ए, another bracket s minus b and the third bracket s minus c. Put the values. s की वैल्यू कितनी है? 22.5 है. 22.5 में से मुझे माइनस क्या करना है? 10 माइनस करना है. फिर सेकेंड ब्रैकेट में 22.5 में से मुझे 15 माइनस करना है. थर्ड ब्रैकेट में से मुझे 22.5 में से 20 माइनस करना है. सो दिस कम्स आउट टू बी 22.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5. अब देखो 2.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? 7.5 आ जाता है. 2.5 एज इट इज है. इस 7.5 को मैं कैसे लिख सकती हूं? 2.5 को जब मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? जब 2.5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 12.5 आएगा. सो अगेन व्हाट आई हैव टू राइट? 12.5 की जगह 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5. अब 2.5 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा. सो आई कैन राइट इट एज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9. अब देखो 2.5 का एक पेयर तो मेरे पास ये बन गया, एक 2.5 का पेयर मेरे पास ये बन गया. 9 को मैं कैसे लिख सकती हूं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूं. तो एक 3 का पेयर मेरे पास ये बन गया. पेयर ही क्यों बनाए? क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसीलिए पेयर से बाहर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5. अब स्क्वायर रूट के अंदर टर्म कौन सी रह गई? 5 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15. ठीक है. 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज इक्वल टू 6.25. क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है. तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो तो मेरे पास आ गया 6.25. 6.25 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास आंसर आता है 18.75 अंडर रूट ऑफ 15. अंडर रूट ऑफ 15 की वैल्यू या तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर रूट हमने 8th क्लास में निकालना सीखा था, हम वहां से अंडर रूट ऑफ 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं. अदरवाइज आप नहीं निकालना चाहते तो यहां तक भी निकाल के आप छोड़ सकते हैं, आगे यूनिट लिख देना सिंपल, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. बट मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 15 की वैल्यू पता है. स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 3.873. सो पुट द वैल्यू 18.75 multiplied by 3.873. So multiplication of these two number results in 72.618.
अप्रोक्सीमेट अप टू 2 डेसिमल करेंगे तो द आंसर इज 72.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. In this way, you can find the solution of the question. Now, moving to the next question, that is question number 6. The sides of a triangle have length 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter. Find the area of the triangle in two different ways. Area of the triangle find out करना है दो अलग अलग तरीके से. तो देखो, जब मुझे साइड गिवन है तो let small a is equal to 7 centimeter, B is equal to 24 centimeter and C is equal to 25 centimeter. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के मेरे पास क्या थे, दो फॉर्मूले थे, एक था हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरा है सिंपल फॉर्मूला. तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करती हूँ, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करती हूँ. सेमी पेरीमीटर क्या है, a plus b plus c divided by 2. This semi perimeter is denoted by small s. So small s की वैल्यू कितनी आती है, 7 plus 24 plus 25 divided by 2. This is equal to 56 divided by 2. So the answer is 28 centimeter. Area of the triangle is equal to under root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Put all the values. What you got, 28 multiply by 28 minus 7 multiply by 28 minus 24, 28 minus 25, right? So this is 28 स्क्वायर रूट के अंदर 28 में से 7 माइनस करेंगे 21 multiply by 4 multiply by 3. So this is, you can write it as 28, 7 4s are 28, 7 3s are 21 multiply by 4 multiply by 3. तो एक 7 का पेयर ये बन गया, 4 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया. So this is 7 multiply by 4 multiply by 3. 7 multiply by 4 multiply by 3. This comes out to be 4 3s are 12, 12 7s are 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट तरीका तो आपके पास था, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लो. अब दूसरा तरीका क्या है आपके पास, कि आपको साइड्स दी हुई हैं, आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे. लेकिन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेस है और कौन सा हाइट है. देखो, अब बेस और हाइट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक ही चीज हो सकती है कि या तो मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाए. राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो सबसे लॉन्गर साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है. ये साइड किसी तरीके से अगर मेरी 25 आ जाती है, ये 24 है और ये 7 है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये एक बेस बन जाएगा, एक हाइट बन जाएगा. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, इस साइड का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 24 का स्क्वायर इज 576. 576 को जब मैं 49 में ऐड करती हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, 625 आ जाता है. दिस शुड बी इक्वल टू, अगर ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC है, तो मेरे पास ये किसके इक्वल होना चाहिए, AC स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. तो मेरे पास AC स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, 625 आ गया. सो AC की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है, और 25 जो है वो थर्ड साइड मुझे गिवन है. तो इसका मतलब जो स्पेसिफिकेशन ट्राइंगल की क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की स्पेसिफिकेशन है. सो ABC is a right angled triangle, right angled triangle. ठीक है, तो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप बेस को 7 कंसीडर करोगे या 24 कंसीडर करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो हियर
1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 24. सो 2 से ये गया 24, 12 पर 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट मेथड था मेरे पास यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके मैंने क्या किया था, एरिया को फाइंड आउट किया था. सेकेंड मेथड था कि मैंने जो ट्राइंगल की स्पेसिफिकेशन गिवन है वो प्रूव कर दिया कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उस पर सिंपल एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया. तो आंसर मेरा दोनों केसेस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. So in this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 7. If the wheel of a bicycle has a diameter of 60 centimeter, साइकिल का व्हील जो है वो किस शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है. अब सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर. ये आपको कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर गिवन है. फाइंड हाउ फार ए साइक्लिस्ट विल हैव ट्रेवल्ड आफ्टर द व्हील हैज रोटेटेड 100 टाइम्स. अगर साइकिल का व्हील जो है वो 100 टाइम्स रोटेट हो जाए तो साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया. सिंपल सा है, एक साइकिल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करता है कि साइकिल की नंबर ऑफ रोटेशन, टायर की नंबर ऑफ रोटेशंस क्या है, और एक रोटेशन में साइकिल कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो किसके इक्वल होगा, जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, यानी कि जितना आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल है. सो डिस्टेंस traveled depends upon the number of rotation कितने हैं, एंड उसके बाद हमारा circumference of the wheel क्या है, circumference of wheel. अब circumference of wheel जो है that is equal to 2 pi r, क्योंकि वो सर्कल की शेप में है. तो 2 pi r मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशंस. अब नंबर ऑफ रोटेशंस जो है वो मुझे कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 100 दे रखी है. तो 100 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. यही होता है, डायामीटर मुझे कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है. तो 2r की जगह मुझे क्या पुट करना है, 60 पुट करना है. सो दिस इज 65. आंसर कम्स आउट टू बी 6000 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है व्हील का डायमीटर. सो दिस यू कैन राइट इट एज 60 पाई मीटर. ठीक है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यही होता है. पुट द वैल्यू ऑफ पाई. पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 मीटर आ जाएगा. 60 को जब मैं 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर कम्स आउट टू बी 188.4 मीटर. इट मीन्स cyclist cover the distance 188.4 meter and 100 rotation of a wheel. साइकिल की 100 रोटेशन कंप्लीट होने पर साइक्लिस्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, 188.4 मीटर. इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है. हुज सरकमफ्रेंस है 66 सेंटीमीटर. सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है, 66 सेंटीमीटर दे रखा है. तो सरकमफ्रेंस इज गिवन एज 66 सेंटीमीटर. सरकमफ्रेंस जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 पाई r के इक्वल, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब जब मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी. सो r इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो यानी कि 33 डिवाइडेड बाय पाई. पाई की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 33 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7. 11 से कट किया, ये 2 पर गया, ये 3 पर गया. सो दिस इज 21 बाय 2. सो रेडियस r कम्स आउट टू बी 10.5 सेंटीमीटर. अब फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. तो क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या किसके इक्वल होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ
सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब है जो सर्कल है उसका 1/4 भाग, 1/4 पार्ट। तो एरिया ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। उसका 1/4 पार्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो 1/4 multiply by 22/7 and r you can put either 21/2 multiply by 21/2. 11 7 3s are 21. So again this is 33 multiply by 21 divided by 8. 33 multiply by 21 is equal to 693 divided by 8. 693 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 86.625। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर में था तो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 9. Question number 9 is the wheel of a car has an outer radius of 28 centimeter. एक कार है, उसके व्हील का जो आउटर रेडियस है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है व्हील का, वहां तक का रेडियस कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर दे रखा है। Calculate how far the car travels after one complete turn of the wheel. Means one turn of the wheel when completed, then you have to calculate कि how much distance the car has traveled. कार ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया जब व्हील का एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट हुआ, एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। और जब कार ने 1 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की तो उसका व्हील जो है वो कितने टाइम्स जो है वो टर्न हो चुका था, राइट। सो हमें दे क्या रखा है? आउटर रेडियस दे रखा है। लेट दैट आउटर रेडियस इज डिनोटेड बाय आर एंड इट इज गिवन एज 28 सेंटीमीटर, राइट। अब वो पूछता है कार ट्रेवल आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न। सो कार ट्रेवल आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न, आफ्टर 1 कंप्लीट turn is equal to circumference of the wheel. Circumference of the wheel. अब circumference of the wheel कैसे निकालोगे? 2 पाई r से निकालोगे। तो 2 multiply by 22/7 multiply by r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28। 7 4s are 28. This is 44 multiply by 4. आंसर comes out to be 176 सेंटीमीटर। मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने? 176 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जब उसका 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया था। नाउ इन द सेकेंड केस, हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो था दैट इज गिवन एज 1 किलोमीटर, बट आपको रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर के अंदर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, हमने पहले भी पढ़ा था, किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रोटेशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील के। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 1 लाख सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रोटेशंस मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ रोटेशंस मुझे पता नहीं है। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? 2 पाई आर के इक्वल है। सो फ्रॉम हियर नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, हमने निकाली हुई है, कितनी है? 176 है। जब 1 लाख को मैं 176 से डिवाइड करती हूं तो आंसर आता है 568.1818। दिस इज कंटिन्यू, राइट। नंबर ऑफ रोटेशंस को मैं पॉइंट में कैलकुलेट नहीं कर सकती, so the number of rotations is approximately equal to 569.
नंबर ऑफ रोटेशंस व्हील के कितने आ गए मेरे पास? 569। जब व्हील 569 टाइम रोटेट होगा तब कार जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितना? 1 किलोमीटर का। In this way, you can find the solution of the question. Now, moving to the next question. Question number 10 is, two rectangles have same area and same perimeter. यानी कि दो rectangles दे रखे हैं. Let rectangle 1 has dimensions. Rectangle 1 की जो dimensions हैं वो क्या है? L1 and W1. L1, W1, where L1 is the length of the rectangle and W1 is the width of the rectangle 1. Right? Now, rectangle 2 dimensions. Rectangle 2 की क्या dimensions हैं? L2, W2, where L2 is the length of rectangle 2 and W2 is the width of rectangle 2. अब वो कह रहा है कि दो रेक्टेंगल्स का सेम एरिया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कैसा होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 हो गया. इसका एरिया जो है वो रेक्टेंगल 2 के एरिया के इक्वल है. हो गई दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड, सेम एरिया है. अब सेम पेरीमीटर है तो इट मींस कंडीशन क्या हो गई मेरे पास? पेरीमीटर जब मैं निकालती हूं तो क्या आता है? ट्वाइस ऑफ L1 प्लस W1, ये रेक्टेंगल 1 का हो गया, एंड ट्वाइस ऑफ L2 प्लस W2, ये हो गया रेक्टेंगल 2 का. 2 से 2 कैंसिल आउट, सो कंडीशन आ गई L1 प्लस W1 प्लस L2 प्लस W2. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर, 4 नंबर्स हैं मेरे पास, लेकिन L1 और W1 का जो प्रोडक्ट है वो L2 और W2 के प्रोडक्ट के इक्वल है. L1 प्लस W1 जो है वो L2 प्लस W2 के इक्वल है. मतलब अगर मैं मान लूं कि मेरे पास पेरीमीटर जो है वो है 18 सेंटीमीटर, L1 प्लस W1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर. कॉम्बिनेशन मेरे क्या क्या बन सकते हैं? 13,5 का बन सकता है, 9,9 का बन सकता है, 10,8 का बन सकता है, एंड सो ऑन. इन सबका सम 13 प्लस 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 18, 9 प्लस 9 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 18, 10 प्लस 8 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 18. तो L1 W1, ये L1 W1 है तो ये L2 W2 ले लो, ये L1 W1 ले लो, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपके बन जाएंगे. बट अब मैं प्रोडक्ट निकालूंगी तो 13 5 जा is 65, 9 9 जा is 81, 10 8 जा is 80. प्रोडक्ट अलग आ गया. पेरीमीटर सेम आया तो क्या हुआ? प्रोडक्ट अलग हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मींस कि मेरे पास L1 W1 की वैल्यू जो है वो L2 W2 के इक्वल हो जाएगी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. कंडीशंस, these conditions 1 and 2 have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक ही सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, और वो सॉल्यूशन पॉसिबल कौन सा है? सॉल्यूशन पॉसिबल इज ओनली वन, एंड दैट इज व्हेन L1 is equal to L2 and W1 is equal to W2. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. दोनों रेक्टेंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है ईच अदर. In this way you can find the solution of question number 10. Now moving to the next question, that is question number 11.
You know that the area of parallelogram is base multiplied by height. पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है. नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड द गिवन फिगर, फॉर्मूले को यूज करके और गिवन फिगर को यूज करके आपको क्या शो करना है, दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जो फिगर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इस कंप्लीट का एरिया जो है दैट इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके सम के हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h. इसको यूज करके आपको निकालना. अब इस ट्रेपेजियम के अंदर लेट दिस ट्रेपेजियम इज a b c एंड d. a b c d ट्रेपेजियम में मेरे पास दो फिगर बन रही हैं. वन फिगर इज a b e और d. ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. और DEC जो है दैट इज अ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEB दैट इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब बेस क्या है, जो मेरे पास ये लेंथ दे रखी है दैट इज A, दैट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय H. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट इज area of triangle DCE that is equal to 1/2 multiply by base multiply by height. हाइट जो है वो सेम है. बेस ट्राइंगल का क्या होगा, EC होगा. EC की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, EC की वैल्यू निकालने के लिए आपको BC में से अगर मैं BE माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, EC की वैल्यू आ जाएगी. BE जो है दैट इज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम की साइड है. तो AD जो है दैट इज इक्वल टू BE. वो किसके इक्वल है, BE के इक्वल है. तो ये A है तो ये भी क्या हो गया, A हो गया. तो यहां पर बेस जो आ गया दैट इज इक्वल टू B माइनस A, हाइट इज H. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के फिगर का नाम क्या है, ABCD. दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करती हूँ, इक्वेशन 1 जो है दैट इज इक्वल टू A प्लस A मल्टीप्लाई बाय H, और इक्वेशन नंबर 2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 B माइनस A मल्टीप्लाई बाय H. दिस इज AH प्लस B multiply by H by 2 minus A multiply by H by 2. AH में से AH by 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, AH by 2 plus BH by 2. So this can be written as 1/2 within bracket A plus B multiply by H. Hence proved. In this way you can find the solution of question number 11. Now moving to the next question, that is question number 12. Question number 12 is by dividing the trapezium into two triangles. Trapezium को अब क्या करना है, दो triangles के अंदर divide करना है. Then you have to show that the area of the trapezium is equal to half of sum of parallel sides multiplied by height. ये स्टेटमेंट में दे रखा है. दैट इज द सेम फॉर्मूला दैट इज 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई बाय. मैंने मान लिया कि ये मेरी क्या है, एक ट्रेपेजियम की फिगर है जिसकी AD साइड जो है दैट इज इक्वल टू A एंड BC साइड जो है दैट इज इक्वल टू B. ट्रेपेजियम को दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करना है तो मैं क्या करती हूँ, ऑपोजिट वर्टेक्स को यानी कि डायगोनल को, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देती हूँ. मैंने डायगोनल ज्वाइन कर दिया BD एंड हाइट क्या होता है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी किस पर, BC के ऊपर. तो वो मेरी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी. लेट दिस हाइट इज H. अब मेरे पास दो ट्राइंगल कौन कौन से बने, ABD एंड BDC. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस. बेस क्या है अब इस केस में, AD है मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेट दैट हाइट इज DM. वो हाइट क्या है, DM के इक्वल लगा लो, या यहां से भी अगर आप डिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करोगे A से तो वो भी मेरी क्या आ जाएगी, हाइट ही आ जाएगी. दैट इज H. कुछ भी आप ले सकते हो. दैट हाइट इज H. सो दिस इज
1/2 AH. This is equation number 1. Now the second triangle, area of second triangle, that is area of triangle BCD. BCD triangle का एरिया क्या होगा? 1/2 multiply by base is BC multiply by H is the height of the triangle. So BC की वैल्यू किसके इक्वल है? B के इक्वल है. So B multiply by H divided by 2, that is equal to equation number 2. Now area of trapezium ABCD, that is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD. ABD का एरिया क्या था? AH divided by 2 प्लस BCD का एरिया क्या था? BH divided by 2. So 1/2 मैंने कॉमन लिया. So फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया A plus B और H भी मेरा क्या आ गया? कॉमन आ गया. यही चीज मुझे क्या करनी थी? शो करनी थी. तो hence proved. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 13. Show how can we use two identical copies of trapezium. किस तरीके से हम दो आइडेंटिकल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम ट्रेपेजियम की कॉपी लेकर के एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं. एंड हाउ विल दिस गिव द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. और ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कैसे देगा? मैंने एक ट्रेपेजियम लिया. दिस इज द ट्रेपेजियम ए बी एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, दैट इज इक्वल टू एच. सेम ऐसे दो ट्रेपेजियम लेने हैं. एक ट्रेपेजियम को आपको क्या करना है? 180 डिग्री रोटेट करना है. 180 डिग्री जब आप उस ट्रेपेजियम को रोटेट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? दिस इज ए, दिस इज बी एंड नाउ दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. अब आपके पास दो ट्रेपेजियम थे. कौन कौन से? ए बी सी डी, सी डी ई एंड एफ. दो ट्रेपेजियम थे. अब आपका यहां से क्या बन गया? ए बी एफ ई जो है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जब ये एग्जैक्टली सिमिलर होंगे. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. मींस ए ई इज पैरेलल टू बी एफ. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. यही होता है फॉर्मूला. हाइट मैंने कंसिडर कर ली कि मेरे पास क्या है? एच है. बेस क्या बनेगा? दिस बी प्लस ए. सो base is now become a plus b and height is equal to h. So area of parallelogram is equal to a plus b multiply by h. अब parallelogram कौन सा है? इसमें a b f e is the parallelogram. This can also be equal to area of trapezium a B C D plus area of trapezium C D E F. Area of trapezium A B C D is equal to area of trapezium C D E F as both are identical. It is given in the question. ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है. सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? दिस इज इक्वल टू 2 times of area of trapezium. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या आया था? a plus b multiply by h आया था. So from here area of trapezium is equal to 1/2 multiply by a plus b multiply by height. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the question number 14, that is the last question for today. Question number 14 is show that the area of a kite is half the product of its diagonal. Kite का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है? डायगोनल के प्रोडक्ट्स के हाफ होता है. तो ये आपको शो करना है यूजिंग एल्जेब्रा एंड यूजिंग ज्योमेट्री. काइट का जो स्ट्रक्चर होता है आपका इस तरीके का होता है. ठीक है. लेट दिस इज अ काइट ए बी सी डी. अब बी डी जो है वो आपका क्या बना? एक डायगोनल बना. और ए सी जो है वो आपका एक डायगोनल बना. ठीक है. जहां दो डायगोनल्स मीट करते हैं लेट दैट पॉइंट इज ओ. वो पॉइंट क्या है? ओ है. डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. राइट. लेट ए सी इज इक्वल टू D1 एंड
BD इज इक्वल टू D2। कैसे शो कर रही हूं मैं? फर्स्ट पार्ट को यूज करके शो कर रही हूं यूजिंग एलजेब्रा। अब क्या है प्रॉपर्टी? इन अ काइट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब परपेंडिकुलर है तो एरिया ऑफ काइट ABCD इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 4 राइट एंगल ट्राइंगल जो है अब ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। तो 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स के एरिया को जब मैं ऐड करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADO। चारों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO अगर मैं लिखती हूं तो दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AO इज द बेस एंड BO इज द हाइट। BCO लिखूंगी तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय CO इज द बेस एंड BO इज द हाइट। CDO लिखूंगी मैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय CO इज द बेस एंड DO इज द हाइट, प्लस ADO लिखूंगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय AO इज द बेस एंड DO इज द हाइट। सो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं, 1/2 कॉमन लूंगी तो यहां इन दोनों ब्रैकेट्स में मेरे पास क्या आ जाएगा? BO कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर बच गया AO प्लस CO। नाउ थर्ड और फोर्थ टर्म को जब मैं कंबाइन करती हूं तो मेरे पास DO कॉमन आ गया और टर्म बच गई CO प्लस AO। नाउ 1/2 कॉमन लिया, AO प्लस CO कॉमन आ गया एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ गया BO प्लस DO। AO प्लस CO या OC जो है दैट इज इक्वल टू AC एंड BO प्लस DO दैट इज इक्वल टू BD। AC को मैंने क्या माना था? D1 माना था। BD को मैंने क्या माना था? D2 माना था। सो द एरिया ऑफ द काइट ABCD दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2। दिस इज यूजिंग द एल्जेब्रा। नाउ अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में क्या है कि मेरे पास यही है प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है। इन अ काइट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो बाइसेक्ट्स ईच। एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ? 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हुए, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ACB अगर मैं देखूंगी तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 AC बेस हो गया मल्टीप्लाई बाय BO प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC बेस हो गया एंड OD इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, राइट? दिस इज इक्वल टू 1/2। AC की वैल्यू किसके इक्वल है? D1 के इक्वल है। BO प्लस OD दैट इज इक्वल टू BD 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाय BD। BD की मैंने वैल्यू क्या एज्यूम की थी? D2 एज्यूम की थी, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ D। दिस इज हाउ यूजिंग ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दिस। दिस इज O। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। स्टिल few questions, 10 to 12 questions are left in this exercise that we will discuss tomorrow. Still, if you are facing any difficulty in any of the question or any of the concept, you can post your query in the comment box. Tomorrow we will meet with the new question set. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.